हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शेक्सपियर की सोनेट 29। और शेक्सपियर की ये हमारी सेकंड सोनेट है जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द नेम ऑफ द सोनेट इज व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज बाय विलियम शेक्सपियर। इंट्रोडक्शन में है कि Sonnet 29 is one of the most famous sonnets written by William Shakespeare. It was published in collection Shakespeare Sonnets in 1609. The poem explores feelings of the despair, social rejection, jealousy, and finally emotional transformation through the power of the love and the friendship. The speaker begins the poem feeling unlucky and rejected by the society. But remembering the love of a dear friend completely changes his mood and gives him a sense of the wealth greater than that of the kings. So, in introduction, I described the whole sonnet. Okay, पूरी सोनेट में हम लोगों ने जो जो कुछ पढ़ना है वो इसके इंट्रोडक्शन में आ गया है। इसके डिफरेंट थीम्स लाइक सोशल रिजेक्शन, जेलसी, और इसके बाद इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है पोइट की, वो सारा कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ना है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता चुकी हूँ कि क्या होती है सोनेट। सोनेट इज़ द फिक्स्ड लाइन्स पोइट्री। ठीक है, तो 40 लाइन्स की पोइट्री होती है ये। और जो शेक्सपियर सोनेट्स हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पेट्रार्कन सोनेट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको पहले पता है, पहला जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि शेक्सपियरन सोनेट जो है हमारी वो 4 लाइन्स के 3 स्टैंजाज होते हैं और लास्ट पे एक कपलेट होता है। ठीक है, तो ये 4 लाइन्स के जो 3 स्टैंजाज होते हैं इनको क्वार्ट्रेन्स कहते हैं। 12 लाइन्स हो जाती हैं ये। उसके बाद एंड पे जो 2 लाइन्स का कपलेट होता है उसमें हमारा रेजोल्यूशन होता है। आपको ये भी पता है कि वोल्टा क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर दिया हुआ है। अब हम लोग एक बार इसके टेक्स्ट की तरफ नज़र दौड़ा लेते हैं कि ये जो सोनेट है एक्चुअल में इसका टेक्स्ट है क्या। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with the friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy content and least. Yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of the day arising from solen earth, sings hymns at heaven's gate. For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with the kings. This is the text of the sonnet. Now we are moving toward the structure of the sonnet. The poem follows the structure of the Shakespearean sonnet, as I told you earlier. What is the structure of the Shakespearean sonnets? There are the 4 lines. There are the 3 stanzas of the 4 lines, quatrain lines in every stanza, and there are the 2 lines at the end of the sonnet, which in form of the couplet. That is the resolution of the sonnet. It contains the 14 lines written in iambic pentameter, and follows the rhyming scheme A B A B. C D C D E F E F and G G. And don't be confusing yourselves into the confusion that what is A B A B. I am going to tell you that what is A B A B. See here, when in disgrace with fortune and men's eyes, A eyes S पे एंड हो रही है लाइन हमारी, तो ये हो गया A. I all alone be weep my outcast state, यहाँ पे देखें stage TE की साउंड एंड पे आ रही, तो ये हो गया B. And trouble deaf heaven with my bootless cries. अब ये देखें eyes and cries, इसका मतलब है हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है उसका जो स्ट्रक्चर है ए बी। हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है ए, दूसरी लाइन है हमारी बी, और अब जाके आप देखें थर्ड लाइन पे फिर से एंड वाली जो राइम है वो एस पे जाके खत्म हो रही है, इट मीन्स ये ए, और जो फोर्थ लाइन है वो एंड पे टी ई की साउंड पे खत्म हो रही है वो है बी। इट मीन्स दैट हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ राइम करेगी और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन के साथ जाके राइम करेगी। दैट्स वाई जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ए बी। ठीक है, उसके बाद आप देखें सी वाली लाइन जो है
जो दूसरा स्टेंजा है हमारा, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ जाके राइम करेगी, और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन के साथ। तो सी डी सी डी, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड राइम स्कीम। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको इसकी समझ लग गई है, स्ट्रक्चर हमारा डिस्कस हो गया है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोनेट. First, I am going to explain the first two lines. When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone be weep my outcast state. यहाँ पे आप देखें जो पोइट है वो कह रहा है, द पोइट फील्स अनलकी, disgrace and with fortune. The poet feels unlucky and rejected by the society. He sits alone and crying over his miserable condition and feels like an outcast. यहाँ पे जो poet है, he feels greatly disgraced in the hands of the fortune. उसको लगता है कि वो दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन है। ठीक है, लोगों के पास बहुत कुछ है, दौलत है, घर है, सारा कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। द पोइट फील्स अनलकी एंड रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी. उसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, वो अकेला बैठा रो रहा है अपनी मिजरेबल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, and trouble deaf heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate. अब यहाँ पे देखें, इसने पोइट ने कितनी बड़ी बात कह दी है। उसने कहा है कि जो है हेवन, मतलब जो खुदा है, उसकी आहो पकार को नहीं सुन रहा, उसकी दुआओं को नहीं सुन रहा। द स्पीकर कंप्लेन्स टू हेवन थ्रू प्रेयर्स बट ही फील्स दैट हेवन डज नॉट लिसन टू हिम. वो कहता है मैं दुआएं करता हूँ, मैं कंप्लेन्स करता हूँ, मैं शिकवे करता हूँ खुदा से, लेकिन मेरी एक दुआ जो है वो नहीं सुनी जा रही. ही लुक्स एट हिमसेल्फ एंड कर्सेस हिज फेट. वो अपने आप को देखता है कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और वो अपने आप को कर्स करता है, अपने आप के ऊपर रोता है। ठीक है, और अपने आप को हर वक्त जो है वो डिस्पेयर रखता है, डिसअपॉइंटमेंट में घिरा रहता है. विशिंग मी like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed. यहाँ पे द पोइट बिगन्स टू कंपेयर हिमसेल्फ विद अदर्स. वो अपने आप को यहाँ पे दूसरों से कंपेयर करता है. ही विशेज ही हैड द होप, अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड मैनी फ्रेंड्स दैट अदर सीम्स टू पोजेस. वो कहता है मेरा भी दिल करता है कि लोगों की तरह मेरे पास भी, मैं भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद रहूँ, मेरे पास भी दौलत हो, मैं भी अट्रैक्टिव हो जाऊँ, मैं भी बड़ा खूबसूरत लगूँ, मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त होने चाहिए. डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy, content and least. यहाँ पे he envies others people's talent and opportunities. वो दूसरों के पास जो टैलेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे जो शायर है वो जेलस होता है. वो कहता है कि मेरे पास ये सारा कुछ क्यों नहीं है. बिकॉज ऑफ हिज सैडनेस एंड इवन द थिंग्स ही वंस enjoyed no longer make him happy. वो कहता है जो चीज़ें मेरे पास पहले थी, मतलब मेरे पास भी, मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मेरे मुझे अल्लाह ताला ने सारा कुछ दिया हुआ है, मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन ये जो हर वक्त मेरे ऊपर उदासी छाई रहती है, तो मेरे पास जो मौजूद ब्लेसिंग्स हैं उनकी भी मैंने नाशुक्री करना शुरू कर दी. बिकॉज ऑफ हिज सैडनेस इवन द थिंग्स ही वंस enjoyed नो लॉन्गर मेक हिम हैप्पी. अब जिन चीज़ों से उसको पहले खुशी मिलती थी, अब वो चीज़ें भी उसको खुश नहीं कर पाती. तो ये यहाँ तक हमारे दो क्वार्ट्रेन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. फर्स्ट 4 लाइंस, उसके आगे वाली नेक्स्ट जो 4 लाइंस हैं, तो टोटल 8 लाइंस हमारी हो गई. अब हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ, जिसमें हमारा वोल्टा होता है. ठीक है ना, वोल्टा होता है टर्निंग पॉइंट. पहले पोइम जो है, सोनेट जो है वो एक जैसी चल रही होती है, सडन से उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है. येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट. लाइन 10-9 में, 9-10 में, एट दिस मोमेंट ऑफ द डीप सेल्फ हेट्रेड द पोइट सडनली रिमेंबर्स द पर्सन ही लव्स. अब देखें वोल्टा आ गया, सडन चेंज. सडन चेंज जब आता है सोनेट में, उसको कहते हैं वोल्टा. दिस थॉट इमीडिएटली बिगन्स टू ट्रांसफॉर्म हिज मूड. अब जो ही उसको अपने प्यारे का ख्याल आया है, जिससे वो प्यार करता है, अपने दोस्त का ख्याल आया है कि कम से कम अगर मेरे पास इतना कुछ नहीं है तो मेरे पास वो मेरा दोस्त है जिसका प्यार है मेरे लिए, तो अचानक से उसकी जो थॉट्स हैं उसमें जो है वो खुशी भर जाती है, उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है. लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग फ्रॉम सोलन अर्थ सिंग्स हाइमन एट हेवंस गेट. तो द पोइट कंपेयर्स हिज राइजिंग
happiness to a lark flying upward at sunrise and singing joyfully towards heaven. अब वो कहता है अचानक से जब उसको दोस्त अपने का ख्याल आता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे जो सुबह सुबह एक स्काई लार्क होती है जो सोई हुई ज़मीन को जगा देती है, जो किसी की तरफ खुशियाँ ले आती है। वो कहता है अचानक से उसके दोस्त का ख्याल उसके दिमाग में जब आता है तो उसको भी ऐसे लगता है कि उसका सारा का सारा जो मूड चेंज हो गया है, उसकी जो उदासी फैली हुई थी, उदासी उसकी जो है वो खुशी में चेंज हो गई है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड such wealth brings, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then scorn to change my state with kings. यहाँ पे वो कहता है कि ये आखिरी दो लाइन्स है हमारी, उसमें जाके जिसमें रेजोल्यूशन हो जाता है, जिसमें सोनेट हमारी जो है हमें हमारा रिजल्ट दे देती है, जो एक जैसी एटमॉस्फेयर चल रही होती है, या फिर जब हमारा वोल्ट आता है उसके बाद हमें रिजल्ट मिलना होता है। रिमेंबरिंग द लव ऑफ हिज फ्रेंड्स मेक्स, रिमेंबरिंग द लव ऑफ हिज फ्रेंड मेक him feel spiritually rich. Because of this he would not exchange this condition even with kings. वो कहता है कि मुझे जब मेरे दोस्त का प्यार याद आया है, उसने मुझे इतना अमीर कर दिया है, स्पिरिचुअली इतना रिच कर दिया है कि मुझे बिकॉज ऑफ दिस लव ही वुडंट एक्सचेंज हिज कंडीशन इवन विद किंग्स. अब मैं अपने आप को किसी, अगर कोई मुझे कहे कि तुम बादशाह बन जाओ और अपने दोस्त का प्यार दे दो, तो मैं बादशाह भी नहीं बनना चाहूँगा. आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ किंग इन द एक्सचेंज ऑफ द लव ऑफ माई फ्रेंड. द लव ऑफ माई फ्रेंड इज़ एवरीथिंग फॉर मी. वो कहता है मेरे लिए मेरे दोस्त का प्यार ही सारा कुछ है, तो मैं क्यों डिस्पेयर रहूँगा, मैं क्यों उदासी में गिरा रहूँगा, जबकि मेरे पास अगर मटीरियलिस्टिक वेल्थ नहीं है, अगर मेरे पास घर गाड़ी बंगले नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसका प्यार मेरे लिए सारा कुछ है. अब इस प्यार के बदले अगर कोई मुझे अपना कहे कि यू विल बिकम द किंग ऑफ दिस स्टेट, अगर तुम हमें अपना दोस्त दे दोगे तो मैं अपना दोस्त उनको नहीं दूंगा. सो this is the line by line summary of this sonnet. Now I am moving toward the whole summary. This poem begins with the speaker expressing deep sorrow and the frustration. He feels unlucky, socially rejected, and inferior to the other people who seem more talented and successful. Because of these comparisons, he becomes dissatisfied with himself and almost despises his own existence. However, the poem takes a dramatic turn when he remembers the love of a dear friend. This thought lifts his spirits like a bird rising joyfully in the morning sky. By the end of the poem, he realizes that love gives him such emotional wealth that he wouldn't trade his life even for the life of a king. So this is the summary of the whole sonnet. Now we are moving toward the major themes. Major themes of this sonnet are power of the love. Love has the ability to transform sadness into the happiness. So this is the most important theme of this sonnet, power of love. Then the social comparison. Comparing ourselves with others can create insecurity and jealousy. So we shouldn't do the social comparison with other people. The next theme is the self worth. The poem shows a movement from self pity to the self confidence. As you notice that in the very start of the poem, when the poet he was in a very despising situation, he was comparing himself with the other. So that's why he was losing his confidence. But after gaining the happiness and after gaining the love of his friend, when he attains the confidence again on himself. So self worth is a very important theme of this sonnet. And then the emotional wealth. Love and friendship are more valuable than material wealth or power. Emotional wealth is everything, and these are the important themes of this sonnet. And then the poetic devices, as we discussed in our previous sonnet also. The Shakespeare again used the different poetic devices in this sonnet. Metaphor. What is the metaphor? The comparison, direct comparison between two unlike objects. A comparison where one thing is described as another to create deeper meaning. So he used the metaphor in this sonnet. सिमिली का भी उसने इस्तेमाल किया है. इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद पर्सोनिफिकेशन भी इसमें इस्तेमाल हुई है, इमेजरी का इस्तेमाल भी हुआ है, एलिट्रेशन भी और हाइपरबोल का भी. ठीक है ना. आपको पता है कि सिमिली क्या होती है? कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. फॉर एग्जांपल द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ लार्क राइजिंग एट द डॉन. ठीक है ना. उसके बाद पर्सोनिफिकेशन की बात हुई है. गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द नॉन ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जांपल डेफ हेवन. यहाँ पे इस पोएम में, इस सोनेट में जो पोइट है उसने डिस्कस किया है डेफ हेवन का. अब जो डेफ होते हैं ये इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने हेवन को डायरेक्ट कहा है कि वो डेफ है. तो ही ट्राइज टू गिव द ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द नॉन ह्यूमन
थिंग्स। उसके बाद इमेजरी का यहाँ पे जिक्र हुआ है, लैंग्वेज दैट क्रिएट्स विविड सेंसरी पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। ऐसी तस्वीर आप देखें, वो राइजिंग स्काई लार्क की उसने बात की है, तो फ़ौरन हमारे माइंड में सुबह सुबह का जो है वो इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं इमेजरी। एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाय वर्ड्स। उसके बाद हाइपरबोल का है, हाइपरबोल होता है एंड लेवल ऑफ द एग्जैजरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को एग्जैजरेट कर देते हो। जैसे कि उसने कहा कि अगर मुझे मेरे दोस्त के बदले में किंग बना दिया जाए तो आई विल नॉट एक्सेप्ट, तो इसको कहते हैं हाइपरबोल। डेलिब्रेट एग्जैजरेशन यूज फॉर एम्फोसिस सच एज द क्लेम दैट ही वुडंट चेंज ही स्टेट विद किंग्स। उसने कहा कि मैं अपनी जो हालत है वो किसी बादशाह के बदले भी ना बदलूँ। So the conclusion of this sonnet is one of the Shakespeare's most powerful exploration of the human emotions. The poem moves from despair and isolation to joy and fulfillment. Through the memory of the love, the speaker discovers that true happiness does not come from wealth, fame, or social status, but from meaningful human relationship. Okay, my dear students, this is the sonnet that we have studied today. Thank you very much.